Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we'll take important topics from 11th of May. So firstly, in this article, it is just that we should know that Hanuman is a type of generative AI model and it is an indigenous model of India. Plus, it will be offering like an advantage that it will be multimodal and multilingual capabilities would be there. For example, in case of text or through voice, you can generate, since it is a generative AI model, through images, like you can generate images, you can just type what kind of image you want, and that image would be generated. And you can also use certain codes also. So the keywords is the large language models and graphic processing units. So even it would be like include languages like Spanish, Italian, German. So foreign languages would also be a part of it. So that's just important. Now, talking about cryptocurrency. So cryptocurrency is like a virtual currency, and here Binance and Qcoins जो हैं, they are trading platforms. So we are seeing कि there are like जब हम बात करते हैं about the regulation of cryptocurrency. So in terms of the trade and the income or the profits that is earned through crypto trading, that is taxed in India, 30% tax, and then TDS is also imposed on it. Now, when we're talking about the regulation of the crypto trading platform, so that comes under the PMLA Act of 2002. And in India, we also saw that there was one scam also, FTX, a scam where the people's money was misused by the promoters. So other examples includes the coin DCX and WazirX. So here, the Binance and KuCoin, they were not allowed to uh, offer their services as far as crypto trading is concerned, again because of the regulatory standards, and it is mandatory for the crypto exchanges to get themselves registered under this PMLA Act 2002. And since they were not registered and they did not apply for it also, so they were not allowed to offer their services in India. Now they are again seeing that they would be re-allowed, they'll be providing re-entry into India. So here one important body which is involved in this is the Financial Intelligence Unit. So looking into certain details about FIU, so it was set up in 2004 by Government of India, and this comes under the Finance Ministry. So this is an independent body, and it reports to Economic Intelligence Council, which is headed by the Finance Minister. And major function is to look into suspectful financial transactions when we're talking about the major functions of FIU. So there are three reports which are received by this FIU, which includes the cash transactions report, suspicious transactions report, and then cross-border wire transfer reports. So it is related to transactions, and it is mandatory for both the public and the private sector banks to file these kinds of reports on monthly basis under this PMLA Act 2002 when the cash transactions they are of and above the value of rupees 10 lakhs in foreign currency. So it becomes mandatory for the public and the private sector banks, and these are filed again, the reports are filed to FIU. And when we talk about the powers of FIU, so it cannot investigate. Now, when these reports are shared with them, they analyze that report, and if they find anything suspectful, then those details they are shared with ED and CBI. So they then take further actions. So that is the important thing here. Now, looking for new export markets amid the geopolitical conflicts. So we are seeing that geopolitical conflicts is majorly driving the trade and the trade policies globally. So in India, we are seeing that what are the other countries or the export markets that we're exploring. So that includes countries like Saudi Arabia, France, Vietnam, Netherlands, Mexico, and Ethiopia. So these are certain examples. And when we talk about firstly, what are the major export items from India, specifically in the merchandise export. So merchandise export, it only involves the goods exports or the visibles. It does not include the services exports. So here the top 5 items of export includes engineering goods is on the top, followed by petroleum products. Thirdly, we have pharma and drugs. Fourth is organic and inorganic chemicals, and fifth is electronic goods.
So herein you can see that different countries where we are exploring different markets under each of these sectors that is mentioned. And when we're talking about trade deficit, so right now it is at $15.6 billion. So when we're talking about trade deficit, so under the current account, we have two categories, subcategories, balance of trade and balance of invisibles. So this is your trade deficit hai, this is the balance of trade. So here we are having deficit and it is narrowing down, it is falling, and now it stands at $15.6 billion as of March 2024. So this is one update. And when we talk about the entire current account deficit, so that is at $10 billion, close to that. Now, one day we were like having this question from PTQ about this baobabs. So we came to know that it is a type of tree species. So even like this is native to Africa. So African baobab trees, and here we're talking about the Rani Bagh, which is again a garden and it is having historical importance. So it is like when we talk about the period of 1860, so it was named as the Victoria Gardens, and that was in the honor of Queen Victoria. So now we're seeing ki there are like different drives to regarding the conservation of this Rani Bagh, because again it is an important part of our heritage also. So this article is very important. So most important article of the day, shrinking savings in India. So here we'll be looking at different indicators, what is happening in the background and what are the reasons behind the falling in the savings rate, and whether the direction in which the falling savings are moving also, whether that is also, it is not important if directly savings are falling, so it is always a negative thing. Something positive can also be, we can say, it can be present in the background, how these things are functioning. So we'll look into that. So specifically here we'll talk about the household savings. So here we have the data also in the form of this bar graph you can see. So blue is for the net financial assets. So net financial assets kya hote? It is talking net. So it means ki financial assets minus the financial liabilities. So then you'll get this in the net form. तो फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेंड अगर हम स्टडी करें तो वी कैन से कि ये जो फाइनेंशियल 2021 था तो दी इट पीक्ड एट 15.7, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ अगेन COVID-19, and after that we can see that there has been a sharp decline in the financial assets of the households. So this is in terms of percentage of the GDP. And at the same time, this light blue colored bar, the bars, they are showing the financial liabilities of the households. So you can see that it is sharply increasing. Why sharply increasing? If you look at the height, so it might not appear that there's a sharp increase, but earlier it was like 4.1, then it declined. And then after that, directly jumped to 5.8% of the GDP. So borrowings, it means liabilities means the borrowings by the households that is sharply increasing. Now, whether this is a good sign or a bad sign, that we'll discuss in this article further. So these are two observations that we can see through this graph. And financial assets, when we talk about that, it is fallen. So we can just have a look at the figures from 12% in financial year 2019 to 10.9%. So it means that if financial assets are declining and financial liabilities are increasing, so means in net, all in all, the savings are decreasing. So this can be arrived at. And why we can say that the savings are falling, so looking into the reasons behind that, the first is that it is found that we want to maintain or we want to increase our, we can say, the quality of life. So for that we are seeing that is one of the reasons why spending on consumption has increased. And even when talking about quantitatively or qualitatively, because in terms of value, inflation is also one of the major reasons behind increase in consumer spending, because inflation has also been at the upper end. So the cost of savings, at the cost of savings, we are seeing that consumption spending has been increasing. This is one trend that has been visible, and households, they're ready to pay for the higher prices also, because again, they want to maintain their standard of living. The third reason is because this is, we can say, it was a temporary factor after COVID-19 to meet up their pent up demand for the consumption. So that also contributed in declining of the savings.
And what do we mean by here? Near negative real interest rate as far as the banking or the money market is concerned. So real negative interest rate means that the interest rate, they are not in sync or they are not rising proportionately as the inflation is rising. So if you keep your money in the bank account, so given inflation rate is higher than the interest rate which banks are offering, so that is why we're using this term near negative real interest rate. So all in all, the consumers or the households, they would not be having any real gain if they keep their money in the bank account. So that was again, we were seeing more shift towards the stock market. And then liability side की जब हम बात करते हैं, तो we are seeing that there is increased amount of lending by even like both the banks and even the non-banking financial companies. So here, when we talk about increase in loans or increase in borrowings, so there are three major sectors where the borrowing has increased. One is the home loans, second is the auto loans, third is the unsecured loans. So here for us, like the concern is the unsecured loans, and the increase in home loans and the auto loans can also, we can say ki it can portray or it depicts something positive also happening. So how or what is the positive element which is present if we are seeing that home loans and auto loans is increasing? So since these are, we can say, the fixed capital assets, so if the borrowings is increasing in home loans, it would help in driving the backward or help in strengthening the backward linkages. For example, home loans demand increases, so the real estate sector will see more labor demand, their wages would increase. Then manufacturing of the cement and the backward industries which are linked to the real estate and the construction, so that would also increase. So in a way, it is spurring or it is multiplying investment, we can say, when we're talking about the borrowings for the home loans and the auto loans. Similarly is the case for the auto loans. Now, when we talk about the growth in the unsecured loans, so there was one trend which was again witnessed in the developed countries during their the decades of 80s and 90s. So at that time, we saw ki in those countries, in the developed countries, there also the consumption demand, it was spurred by consumerism. And again, that was supported by leverage. So what do we mean by leverage? Leverage simply means that the households, they are borrowing to again spend on their consumption. So whether this is positive or negative, so it would be a positive growth only up to a certain limit if the things or if the unsecured loans, they are growing, but it has to happen in a certain fixed limit. If it grows too much because the loans are unsecured, so again the risk of defaults, the risk of increase in NPAs is equally risky. So that is why up to a certain limit, it is positive, but beyond that, it becomes a riskier thing for us. And given this, again, we saw like a month ago that even RBI was very vigilant about the uh, increase in the number of the unsecured loans. So even the changes that were introduced, that the CAR, the limit was increased to 125% for the banks. So as long as we see that savings, they are adequate to finance the investment, there would be no major problem for the economy. And once we see that, again, this element is connecting savings and investment. So once we see that investment is being spurred by because of borrowings also, so after that, it becomes important that that investment level needs to be sustained or needs to be, even if it wants to increase also, so that needs to be backed or it needs to be financed by the savings. If that is not going to happen, then we'll see that investment, it can't sharply fall. So it will sustain at that level, but it would be financed by foreign capital, and foreign capital would mean increase in external borrowings, which again become riskier for the economic growth, and it would also lead to increase in current account deficit, and even we can say the capital account deficit as well. So these are different nuances and things which have been happening. Then UK exits the recession with fastest growth in 3 years. So here, if we look at the entire journey of the UK's growth, so the graph, it is depicting us the real post-tax household income. Post-tax household income simply means the disposable income. So what has been the trend? So 1998, say up till 2008, before the financial crisis of 2008-9, we saw that there was a positive growth, or it had a like a stable growth. So this Blair boom means the prime minister during this time period was Tony Blair. So he ensured that there was more expenditure, more growth
in terms of the social sector. So there was increased social spending during his tenure, and he even took anti-poverty measures. Then we had 2008-9 financial crisis. So you can see that there was negative growth in the disposable income. And post that, there was again sharp rise. And during this time period, we saw there was a lot of volatility and fluctuations. So here, the one reason cited here is the increase in the government taxes. And then again, there was the challenge of increased inflation. Then after COVID-19 pandemic, or like during 1 or 2 years, there was negative growth. But after that, there was a positive growth. Slightly, we can say that there was again slight positive growth. And uske baad se fir again we saw there has been a jump. So this time period becomes important or to assess and in order to come to the conclusion whether there has been recession or not. So one of the factors, or we can say one of the convention which is globally followed when we say that whether an economy is going through recession or not, is that if there is negative GDP growth rate in the past 2 consecutive quarters, then we can say that the economy might be heading towards a recession. But since now we are seeing there's positive growth in the disposable income of the households in UK, so which is driven by both the services and the manufacturing demand and the growth in these two sectors. So that's why it exits the recession with the fastest growth in the 3 years. इसमें मानसी अगर क्वेश्चन है, जैसे किसी भी कंट्री में रिसेशन आती है तो गवर्नमेंट की या फिर आरबी, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो आरबीआई की या भारत सरकार की क्या नीतियां रहती हैं रिसेशन को फेस करने के लिए, मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स? तो रिसेशन में वी सी दैट जो एग्रीगेट डिमांड है दैट डिक्लाइंस, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन हो जाती है तो वी ऑल्सो सी कि जो अगेन बैकवर्ड लिंकेजेस है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कम होने लग जाती है। तो उसको स्पर करने के लिए दोनों मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड बोथ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है, बट वी से कि सप्लाई साइड मेजर्स पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सप्लाई साइड मेजर्स दे आर मेजरली ड्रिवन बाय फिस्कल पॉलिसी। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वी कैन से टैक्स रेट रिड्यूस करना, ये चीज और स्पर कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, लाइक टैक्स इंसेंटिव्स देना। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में भी अभी ऐसे तो नहीं बोल सकते कि रिसेशन के लिए स्कीम है, जैसे पीएलआई वन ऑफ द इंसेंटिव जो स्कीम की हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ऑल्दो ऑब्जेक्टिव अलग है। एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पे अगेन वी नीड टू बी केयरफुल कि इन्फ्लेशन इंक्रीज इतने ज्यादा ना हो, तो टू कीप द इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, दैट इज व्हाई द सपोर्ट और वी कैन से दी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोनों एक्सपेंशनरी पॉलिसीज ही हम फॉलो करेंगे। ओके मानसी। ओके, थैंक यू। प्रेरणा एंड करुणा, यू कैन कंटिन्यू। सो यहाँ पे बात हो रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि ड्यूली प्रोसेस फॉलो हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं, इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जा सके, और जो कैंपेनिंग हो रही है हमारे इलेक्शन से पहले उसमें कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हर्ट ना होए, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना होए, ऐसे तरीके का। सो नॉन बाइंडिंग, नॉन लीगली बाइंडिंग नेचर में है एमसीसी, बट जो ईसीआई है वो इंश्योर करता है कि बेसिकली जो इलेक्शन है वो अच्छे से कंडक्ट किया जा सके। 1993 में यहाँ पे बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने तब रीअफर्म किया था कि कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, एंड उनको प्लेनरी पावर्स दी गई थी इसके अलावा, ताकि अपनी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है उसको फुलफिल कर पाए, एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली उसको सेफ गार्ड कर पाए। तो यहाँ पे डेटरेंस के लिए एंड क्या की प्रोविजंस हैं एमसीसी के अंदर अगर बात करें, तो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज जो कि कम्युनल टेंशंस क्रिएट कर पाए उनको प्रिवेंट करने की बात करता है। पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट को प्रोहिबिट करता है कि कम्युनल हेट्रेड या फिर दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एमिनोसिटी प्रेजेंट ना हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कास्ट बेस्ड जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सोशल हार्मनी बेसिकली हम प्रमोट कर पाए। अगर आप अपने ओपोनेंट का भी क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो वो किस मैनर में होना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी को अपने उसमें रखो।
इसके अलावा पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है अंडर द एमसीसी। करप्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि वोट्स खरीदना या फिर गिफ्ट देना इलेक्शन के टाइम पे, वो सब वायलेशन कंसिडर किया जाएगा इस कोड का। डेटरेंस की बात करें तो जो ईसीआई है उसके पास पावर होती है कि कोई भी अगर पार्टी है उसके एक्शंस को वो सस्पेंड कर सकती है या फिर विड्रॉ भी कर सकती है अगर वायलेट किया जाता है एमसीसी। विड्रॉल हो सकता है किसी भी पार्टी का जो भी एडवांटेजेस उनको मिल रहे हैं उन चीजों का। टेम्परेरीली 24 से 48 आवर्स तक ईसीआई जो है वो सस्पेंड भी कर सकता है कैंपेनिंग। एंड जो इन्फोर्समेंट है एमसीसी का किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल स्टेटस के बेसिस पे नहीं है, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। कुछ कुछ चैलेंजेस बट इसके साथ आते हैं क्योंकि कहीं पे अभी भी रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है जिससे कि इलेक्टोरल इंटेग्रिटी जो है हमारे इलेक्शन सिस्टम की वो हार्म होती है। जो पॉलिटिशियंस है वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बेसिकली यूज करते हैं ताकि उनको वोट्स मिल पाए, जो कि हमारे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। एंड कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस तो ऐसे भी हैं जो कि एमसीसी को तो वायलेट करते ही हैं बट उसके साथ जो ओथ वो लेते हैं एज अ पब्लिक सर्वेंट उसको भी बेसिकली वायलेट करते हैं, जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आया है, जो कि लीगल प्रोविजन देता है हमें अगर ऐसी कोई भी रिलीजियस ग्राउंड्स पे हेट्रेड क्रिएट किया जा रहा है तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट उसके पीछे हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे जुडिशरी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसने डायरेक्ट किया ईसीआई को ताकि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ऐसे वायलेटर्स के अगेंस्ट वो इनिशिएट कर पाए और इंश्योर कर पाए कि जो इलेक्टोरल नॉर्म्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फ्लेमिंगो। तो हम यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं फ्लेमिंगो माइग्रेटरी बर्ड है जो कि नवी मुंबई में पौंड के एरिया के पास देखा गया है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले फ्लेमिंगो की बात करते हैं। जो हम इमेज में भी देख रहे हैं फ्लेमिंगो दो टाइप का होता है, एक तो ग्रेटर फ्लेमिंगो और एक लेसर फ्लेमिंगो। और भी टाइप के होते हैं बट इंडिया में ये दो टाइप ही मिलते हैं। जो ग्रेटर फ्लेमिंगो होता है वो सबसे बड़ा होता है, टॉल होता है, और लेसर नाम से हम देख सकते हैं कि साइज में छोटा होता है। फ्लेमिंगो की अगर बात करते हैं तो लीस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी में आता है इन IUCN। एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो जो होता है, जो बड़ा एंड टॉल होता है, वो स्टेट बर्ड भी है हमारे गुजरात का। कौन से एरिया से माइग्रेट करके आते हैं इंडिया की तरफ? ईरान, जो सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है वहां से, एंड दुबई वाला जो रीजन है, ओमान रीजन है, वहां से ये बेसिकली आते हैं साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया। 6 स्पीशीज टोटल हैं बट इंडिया में 2 ही पाई जाती हैं। लंबी हाइट होती है इनकी, येलोइश आईज होती हैं, पिंकिश और वाइटिश बॉडी का कलर होता है जैसे कि हम देख भी सकते हैं, और IUCN की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न्ड होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज में। ओके, so next is regarding freshwater quest, the likely new hunt। तो सबसे पहले बात करें फ्रेश वाटर क्वेस्ट, क्यों है फ्रेश वाटर की क्वेस्ट? तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि फ्रेश वाटर 2.5% ही अवेलेबल है। उसमें से भी बहुत सारा जो फ्रेश वाटर है या तो उधर कंटामिनेटेड है वो, जैसे कि लेड या मर्करी पोल्यूशन देखा जाता है अंडरग्राउंड वाटर जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है रिजर्वॉयर्स में उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एल नीनो का इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, रिजर्वॉयर्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम पे चल रहे हैं। जो वाटर पोल्यूशन है BOD और COD जो होता है वो हमें दिखाता है कि कितना ज्यादा फ्रेश वाटर में भी वाटर पोल्यूशन देखा जाता है, कितनी रिवर्स हैं जो कि ड्रेन में कन्वर्ट हो गई हैं। इसीलिए फ्रेश वाटर क्वेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है बट जो अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर की वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यू गोल्ड हंट। तो न्यू गोल्ड हंट किसको बोला जा रहा है? यहाँ पे न्यू गोल्ड हंट बोला जा रहा है अंडर सी फ्रेश वाटर रिजर्व्स को।
तो यहाँ पे स्टडी की गई, पहले तो यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, उसके बाद वियतनाम में भी साइंटिस्ट ने स्टडी की एंड पाया गया कि जो फ्रेश वाटर है उसके सोर्सेज हैं अंडर वाटर। जिसका एग्जांपल यहाँ पे देखा जा रहा है, ब्लैक सी में एक रिवर मिली जो कि नीचे ब्लैक सी के बॉटम पे फ्लो कर रही है, जिसका जो मास है अबाउट 22,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर पास कर रहा है। अगर इसको लैंड बेस्ड रिवर से हम कंपेयर करने लगेंगे तो वर्ल्ड की अभी तक की सबसे लार्जेस्ट रिवर कंसिडर किया जाएगा इसको। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है, डेटा में दिखा रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अर्थ पे इट इज 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब, जिसमें से 97.5% जो है वो सॉल्ट वाटर है, 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है। बट इस 2.5% में से भी सरफेस के ऊपर सिर्फ 0.3% वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमको। मतलब बाकी कहाँ पे है, तो जो बाकी वाटर है फ्रेश वाटर वो अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड तो है ही जो जहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है कि ओशन के बेड के अंदर भी वो पाया जाता है। तो इसलिए ये एक नई खोज है जिसके बारे में कंट्रीज एक्सप्लोर करेंगी। अब एक्सप्लोर करेंगी तो कहाँ तक आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे यूएन क्लॉज के अंदर एरिया डिफाइन किया जाता है, जो कंट्री है उसका नेशनल उसका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो EEZ तक होता है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि कोस्ट से स्टार्ट करके 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। बट उसके आगे जो एरिया होता है, उसके आगे जो सी बेड होता है उसको एरिया कंसिडर किया जाता है, जो कि यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन 1982 में आया, ये डिफाइन करता है। अब जो यूएन क्लॉज है ये अकेला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली कन्वेंशन है जो इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे ओशन का गवर्नेंस कैसे होना चाहिए उसको डिफाइन करता है। इससे पहले जिनेवा कन्वेंशन भी आया था 1958 में, बट वो इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, इसलिए हम यूएन क्लॉज को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन उठता है कि आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो एरिया है जिसमें एरिया बोला जाता है उस पे उसको कॉमन हेरिटेज कंसिडर किया जाता है, मतलब सारी कंट्रीज उसका यूज कर सकती है बट सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। इसके अलावा रिसोर्सेज भी डिफाइन करता है, तो रिसोर्सेज में भी सेम चीज आ जाती है कि रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मिनरल्स जो भी सी बेड पे हमें मिल रहे हैं, जिसको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि यूएन क्लॉज के अंदर ही बनाया गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन उठते कि क्या जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हम बात कर रहे हैं अंडर वाटर मिल रही है, उनको कैसे किस कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा, उनकी अलग से डेफिनेशन बनाई जानी चाहिए या फिर इन्हीं रिसोर्सेज डेफिनेशन के अंदर वो आएगा। एरिया में भी सेम डिबेट हो रही है कि कौन सी कंट्री कितना एक्सप्लोर कर सकती है। सो बेसिकली जो कलेक्टिविटी है इस एरिया को यूज करने में उसको हम कैसे गवर्न करेंगे, क्योंकि एरिया जो है उसका भी जो अथॉरिटी है ज्यूरिसडिक्शन है उसके ऊपर वो डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफिक रेगुलेशन होना चाहिए ताकि अंडर अंडर वाटर अंडर सी जो वाटर हमें मिल रहा है उसको हम गवर्न कर पाए। Next. So next is regarding Israel, Saudi Arabia and the churn in the Middle East, the view from India. So यहाँ पे जो यूएस है वो बात कर रहा है कि वो यहाँ पे जो यूएस है वो बात कर रहा है कि वो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बनाएगा विद सऊदी अरेबिया ताकि हेल्प कर पाए वो इजराइल को उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, किसके साथ, हमास के साथ जो कि ऑलरेडी वॉर भी हम देख रहे हैं, एंड ईरान के साथ। तो यहाँ पे इन्हीं चीजों की बात हो रही है, कैसे सऊदी और यूएस जो है वो डील करते हैं स्पेसिफिक वे में। जो यूएस है वो कंट्रोल करता है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। इसके अलावा इंडिया के डायनामिक्स की अगर बात करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ और इसराइल के साथ, तो सऊदी अरेबिया के साथ जो है जो सऊदी इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो बेसिकली यूएस और सऊदी अरेबिया का जो पैक्ट है बिटवीन इसराइल एंड ईरान, तो इसमें इसराइल और ईरान जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अपने रीजनल जो भी चीजें हो रही हैं उसको सॉल्व कर पाए। इस सऊदी और इंडिया की अगर बात करते हैं तो ट्रेडिंग में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है हमको, तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया सऊदी का, एंड जो सऊदी है वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। एनर्जी कॉपरेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कॉपरेशन के बीच में।
एंड जो सऊदी है वाज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सोर्सिंग डेस्टिनेशन, तो इंडिया वहां से इंपोर्ट करता था, थर्ड लार्जेस्ट था इंडिया के लिए। अगर टोटल वैल्यू की बात करते हैं ऑफ ट्रेड 2022 से 23 के बीच में, तो 52.76 बिलियन डॉलर्स जो ट्रेड था दोनों कंट्रीज का था। इसके अलावा PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरेबिया का, उसमें भी 4.6 बिलियन डॉलर्स पुट किए थे, इनपुट दिया था इन इंडियन स्टार्टअप्स, जिसमें से डिलीवरी, फर्स्ट क्राई, ग्रोफर्स, ओयो, पेटीएम, ये सब, पॉलिसी बाजार, ये सब आता है। एंड सऊदी अरेबिया में 2.4 मिलियन इंडियन कम्युनिटी अभी रह रही है। सो वो बेसिकली बोल सकते हैं एक लिविंग ब्रिज की तरह काम करती है, रेमिटेंसेस में भी इंडिया को कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया एंड इसराइल की अगर बात करते हैं तो काफी पहले से ही दोनों का रिलेशन है। अगर ट्रेड में बात करें 1992 में से लेके 2022 या 23 तक कंपेयर करते हैं तो राइज हुआ है। पहले 200 मिलियन डॉलर्स था, अभी 10.7 बिलियन डॉलर्स है। तो इंडिया जो है इसराइल का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन एशिया, और ग्लोबली बात करते हैं तो सेवेंथ लार्जेस्ट है। इनोवेशन इकोसिस्टम दोनों कंट्रीज को काफी ज्यादा शेयरिंग होती है, जिसमें स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, वो इसराइल से हमने सीखा है, वहीं से अडॉप्ट किया है। सो ये जो बायलेटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स है इंडिया की दूसरी कंट्रीज के साथ, इंडिया को स्ट्रेंथन करनी चाहिए। और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके साथ फॉरेन पॉलिसी को लिंक नहीं करना चाहिए, तो डी लिंकिंग की यहाँ पे बात हो रही है। रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, जिसमें आ जाता है कॉरिडोर, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा एंड आगे इंडिया को हेल्प करेगा कनेक्टिविटी एशिया के ओवरऑल बढ़ाने के लिए। G20 समिट में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें यही है कि कैसे जो यूएस है और सऊदी अरेबिया का ट्रीटी है वो इसराइल को हेल्प करेगा, एंड उनका जो ट्रायंगल है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडिया को। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इसरो ने बनाया 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, 3D प्रिंटिंग को यहाँ पे देखा जा रहा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी हम बोलते हैं। सो लेजर पावर बेड फ्यूजन टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे कि जो जॉइंट्स को वेल्ड करते हैं हम वो काफी ज्यादा कम हो गए। जैसे पहले देख सकते हैं 14 पॉइंट्स पे हम वेल्ड कर रहे थे, यहाँ पे 19 वेल्डिंग पॉइंट्स को एलिमिनेट किया गया। PS4 इंजन है जिसको PSLV में यूज किया जाएगा, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड PS4 जो है ये रॉकेट है जिसको हम फोटो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग को कैसे हमने यूज किया है, जिसमें इंजन जो है उसको रीडिजाइन किया गया है एंड हेल्प किया है इसमें 3D प्रिंटिंग ने कि वेल्ड जॉइंट्स जो है उसको हम कम कर पाए। मटेरियल यूसेज जो है वो काफी ज्यादा कम हुआ है। पहले मटेरियल इसमें 500 समथिंग केजीज यूज हो रहा था, एंड अभी जो मेटल पाउडर यूज हुआ है वो सिर्फ 13.7 केजीज है। तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन टाइम जो है उसको 60% तक कट कर दिया 3D प्रिंटिंग का यूज करने की वजह से। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। AM की बात करते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर हो सकता है, जिसमें ज्यादातर हम मेटल और प्लास्टिक को यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग में। सो कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री प्रोजेक्ट्स जैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं जिसमें लेस वेस्ट क्रिएट होए, उसके लिए हम 3D प्रिंटिंग जो है उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें कॉमन टेक्निक यही है जो इसमें यूज की गई है, दैट इज फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसमें एक फिलामेंट जो है उसको नोजल में डाला जाता है। और इसमें भी दो टाइप होते हैं, फिर या तो आप लेजर का यूज करके उसको कर रहे हो या फिर लेयर बाय लेयर आप कर रहे हो। एंड PSLV की अगर बात करें तो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है ये भी, दैट इज पोलर सैटेलाइट व्हीकल। और सन के जो भी सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये प्लैनेट जा रहे हैं वहां तक हम इसके द्वारा पहुंच सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है मार्स के ऑर्बिटर मिशन में, दैट इज मॉम, एंड ऑल्सो चंद्रयान 1 में। नेक्स्ट,
Next is regarding telecom department, how it has directed the telecos to block 28,200 phones which were used in the cyber crimes. So इतने ज्यादा देख सकते हैं हम, मोबाइल फोन्स को, मोबाइल हेडसेट को बैन किया जाएगा जो कि साइबर क्राइम्स में यूज किए जाते हैं। साइबर क्राइम होता क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को, कंप्यूटर को एक या टेलीफोन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है ताकि उससे क्राइम वो कमिट कर पाए। साइबर क्राइम्स जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं एंड यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर का रोल यहाँ पे आ जाता है क्योंकि मोबाइल फोन्स को यूज किया जा रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है DIP, दैट इज डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसमें बेसिकली सारी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को ये साथ में लेके आ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट आ जाएगा, फाइनेंशियल एंटिटीज आ जाएंगी जैसे बैंक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, ताकि टेलीकॉम रिसोर्सेज को का जो मिसयूज हो रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड्स में और साइबर क्राइम्स में बेसिकली उसको ये कम कर पाए। जिसमें इंपॉर्टेंट रोल KYC भी प्ले करता है जब हम सिम खरीदते हैं कोई भी। सो अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स आ जाते हैं जिसमें डिनायल ऑफ सर्विस हो जाता है, बेसिकली ऑनलाइन सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाते हैं, नेटवर्क को सीधा हिट करता है साइबर क्राइम। साइबर स्टॉकिंग होता है, फिशिंग होता है, जिसमें जो अटैकर है वो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग यूज करता है, आपका डेटा चुरा लेता है, लॉगिन क्रेडेंशियल, आपका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वो सब चुरा लेता है। सो जैसे जैसे IoT एंड 5G आ रहा है, इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम आ रहा है एंड ये साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं जो कि ट्रांसनेशनल, ट्रांसकॉन्टिनेंटल बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि इनको हम टैकल कर पाए, साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस बढ़ा पाए, जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है हमारा उसको स्ट्रिंजेंट कर पाए हम इसके लिए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ओवर यूज ऑफ स्टेंट्स। तो स्टेंट्स होता क्या है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 80% जब ब्लॉकेज हो जाती है तभी स्टेंट को यूज करना चाहिए। तो स्टेंट कब यूज किया जाता है, बेसिकली फोटो में भी हम देख सकते हैं, हमारी जो आर्टरी है जो ब्लड देती है हमारे हार्ट को, कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, अगर उसमें 80% तक ब्लॉकेज हो जाती है तो ऐसे ये मेटल मैश टाइप स्ट्रक्चर डाला जाता है जो कि एक्सपैंड हो जाता है, जहां पे ब्लॉकेज हो रही होती है उस आर्टरी को एक्सपैंड कर देता है। तो स्टेंट मेटल से बना होता है, मेश कॉइल से होता है। इसके अलावा इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप होता है, एक तो बेयर मेटल वाला जो पहले यूज किया जाता था, अभी जो यूज किया जाता है उस पे हम मेडिसिन कोट करते हैं ताकि जो हमारा स्कार टिश्यू है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। इसमें एंजियोप्लास्टी, जिसका मतलब वही है कि जो ऑपरेशन होता है हमारा ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज का, उसका यूज किया जा रहा है। तो जैसे एंटीबायोटिक्स में हम देख सकते थे कि ओवर यूज हो रहा था, तो यहाँ पे स्टेंट्स के ओवर यूज की बात की जा रही है कि जब 80% ब्लॉकेज नहीं है तब भी उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। सो स्टेंट्स के सिर्फ ओवर यूज की बात नहीं, स्टेंट्स की प्राइसिंग जो है उसकी भी ऊपर क्वेश्चन उठता है कि उस पर रेगुलेशन होनी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं एंड काफी कॉमनली यूज किए जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का, जो कि एस्टैब्लिश है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर।